free of cost, and the thing is, it's still a social taboo. So we Oh, want it is for sure. I know. yeah. So now I think we are live, and I think over to you, Sapna. Good evening, everyone. I'm Sapna Ahuja from Parisar Asha. I'm associated with Parisar Asha as Head Theatre and Teachers Training. I welcome all of you for today's session. So let me introduce our esteemed guest of the day, Ms. Riddhi Doshi Patel. So Riddhi Doshi Patel, ma'am, is qualified child psychologist, parenting counselor, 3 times TEDx speaker, and advisor to 16 TEDx clubs. She is the recipient of multiple awards, including the National Award and Young Entrepreneur Award. She is the founder of Lajja, India's first forum for women that focuses on women's development, growth, and self-empowerment. यहाँ थोड़ा सा हम रुकेंगे क्योंकि जब मैं लज्जा के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे बहुत ही खूबसूरत कुछ लाइनें मिली। उसमें बहुत कुछ ऐसा था जो बहुत खूबसूरत है और एनकरेजिंग है फॉर वुमेन। बट हमारे ऑडियंस के लिए मैं कुछ पंक्तियां उसमें से पढ़ना चाहती हूँ जो लज्जा से मैंने ली हैं। तो वो ये हैं, एक माँ, एक बहन, एक बीवी, सब एक लड़की का चेहरा है, बहुत कीमती, बहुत खूबसूरत, खुदा का दिया हुआ तोहफा है। हम वो कर जाएं जो कोई सोच नहीं सकता, कुछ सरहदों ने, कुछ बंदिशों ने रोका है। कहने का मतलब ये है कि लज्जा में सारी बंदिशों को तोड़कर, सरहदों को तोड़कर विमेन एम्पावरमेंट पर काम किया जाता है बहुत ही खूबसूरत ढंग से। दिस इज लज्जा एंड मच मोर डेफिनेटली। बट कुछ पंक्तियां मुझे बहुत अच्छी लगी तो मैंने आपसे शेयर की। She has established 6 Lajja chapters across India, working in synchronization for the growth, development and empowerment of women from rural and urban settings. गांव के क्षेत्र में भी और शहरों के क्षेत्र में भी किस तरह से औरतों को एनकरेज किया जा सकता है, उन्हें बढ़ावा दिया जा सकता है, उन्हें और स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, उसके लिए Madam ने 6 Lajja chapters she has already established. Wow. She is also a qualified trainer and has conducted training programs for corporates, individuals, educational institutes, and NGOs. Now, very, very important highlight about her is she is a well-known advocate for mental health awareness and also has the distinction of conducting the very first online roundtable conference to discuss the recommendations of the National Education Policy 2020 and submit a white paper on journeying from the same to the Ministry of Education. My God. So wonderful, wonderful introduction. और मैं तो बहुत excited हूँ हमारे आज के स्पीकर, गेस्ट स्पीकर को सुनने के लिए, उनसे सजेशंस लेने के लिए और उनसे कुछ ऐसे टिप्स लेने के लिए जो हमारे लिए बहुत ही यूजफुल हो सकते हैं। तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में आज द एक्सपर्ट। Thank you so much, Sapna, and thank you, Aarti ma'am, for having me here. Thank you so much. So I will definitely start with my very first question to you. सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाने के लिए हमारा पहला सवाल आपके सामने है। What are the different factors that affect the concentration level of a child, ma'am? Okay. Very important question, Sapna. So, कभी-कभी बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, can't focus, and multiple चीजें होती हैं. Now, when you ask for reasons, there are multiple distractions, right? But पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि really concentration नहीं है कि कुछ और इनको परेशान कर रहा है. So it's very important that even before we go for distractions or what are the factors that affects concentration, हमें ये समझना जरूरी है कि concentration चीज होती क्या है and why are we discussing concentration? So very important कि बच्चा जो चीज कर रहा है वो आराम से खत्म करे and दूसरी चीज पे जाए, that is called concentration. Now concentration में थोड़ा और भी ज्यादा है कि जो भी बच्चा कर रहा है वो दिल से करे, दिमाग से करे, समझ के करे.
10 मिनट भी उनका कंसंट्रेशन स्ट्रांग रहेगा, बच्चा बहुत अच्छी तरह से the child will remember the things that has been learned. So it is very important that concentration का definition हम समझे. Okay, physically, mentally, emotionally, the child is handling some work and is into it is basically called concentration in a common layman's language. Okay, now हम कैसे समझ पाए कि हमारा बच्चा कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है या कर पा रही हैं, एंड व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? तो अगर आपने कभी देखा है कि बच्चा ऐसे लिखता है, बैठा है, और फिर कहीं जाके ऐसे सोच में पड़ जाता है, बड़ी सी सोच में, कि कोई कहीं ही स्टेयरिंग, मे बी यू फील कि कुछ देख रहा है, बट बच्चा देख नहीं रहा होता है, वो स्टेयर कर रहा होता है, और वो स्टेयर कर रहा होता है बट उसका माइंड कहीं और चल रहा होता है. तो देख कहीं रहा है, माइंड कहीं और चल रहा है. देन कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चा आपसे कुछ बात कर रहा है, कुछ लिख रहा है, एंड ऑटोमेटिकली देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द टॉक्स, देयर इज नो कनेक्ट बिटवीन द थॉट प्रोसेस. सो टॉकिंग अबाउट अ सिंपल एग्जांपल, कि हम स्टडीज, सोशल स्टडीज की बात कर रहे हैं, सोशल स्टडीज में हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, हिस्ट्री में पर्टिकुलर सिटी जैसे जयपुर, और जयपुर के किंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, और वहां से एकदम से वो ज्योग्राफी पे आ जाएगा. ओके, सो देयर इज अ स्विच एंड वेरी इमीडिएट स्विच. तो वो कंसंट्रेशन उसका लो समझा जाता है, क्योंकि वो बच्चा वहां है पर बोल कुछ रहा है, समझ भी रहा है, पर कहीं पे then he jumps onto something else. Also, जिसका कंसंट्रेशन का इश्यू रहता है, इनको बार बार हमें कुछ चीज समझानी पड़ती है. हमें लगता है कि वो नहीं, हमें लगता है वो सुन रहे हैं, बट एक्चुअली देयर माइंड इज वर्किंग समवेयर एल्स. सो वो एग्जैक्टली नहीं सुनते हम जो बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कभी आपने देखा है बच्चों को बोला है कि तू यहाँ जाके ये चीज लेके आ. अगर आपने 2 चीज लिख दी एंड उसको वो बोलेगा लिख के दो, अगर आप बोलोगे याद रखना, याद रखने में जब आप वापस आते हो, वो बच्चा वापस आता है आपके पास, तो वो एक ही चीज लेके आता है, एक मैं भूल गया. क्यों भूल गया? नॉट दैट द चाइल्ड हैज अ प्रॉब्लम, बट द चाइल्ड हैज नॉट listen to the message very clearly. The concentration lacks there. Then also कभी-कभी बच्चा एक टास्क कर रहा है, जैसे पढ़ाई कर रहा है, स्कूल में ऑनलाइन पढ़ाई है, या होमवर्क कर रहा है, या ड्राइंग कर रहा है, और साइड में जाके आप कुछ उसको कुछ इंस्ट्रक्शन दोगे दैट ओके आई एम कमिंग इन सम टाइम बैक होम, एंड यू लॉक द डोर और यू टेक केयर. आप वापस आओगे तभी वो वही करता रहेगा, बट आपको पूछेगा आप कहाँ थे, दिखे नहीं. So he or she cannot take 2 tasks at a time. Task can be anything. सुनना, काम करना भी वो 2 टास्क हो जाती है. तो वो एक ही टास्क पे कंसिडर कर पाते हैं, 2-3 चीज उनको नहीं याद रहती है, फोकस नहीं कर पाते हैं. कभी-कभी बहुत एक्सप्रेशंस, बहुत डम से एक्सप्रेशन I think some network connection problem. Yes. So Sugdha, if you allow me, so I will brief this much to the audience what she has mentioned. Yeah, sure, Sapna. Yeah. So डॉक्टर रिद्धि मैम ने जैसे बताया कि हमको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम है क्या. हम सिर्फ अंदाजे लगा के ये नहीं बोल सकते, लेबल नहीं कर सकते बच्चे को कि इसको तो कुछ समझ नहीं आता, या तो ये तो पढ़ता नहीं है, इसका ध्यान नहीं है. ये एक समस्या है जिसको हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ध्यान देकर. तो उन्होंने 2-3 क्या इंपॉर्टेंट चीजें बताई. हम कैसे ये पहचान सकते हैं कि बच्चे को कंसंट्रेशन मीनिंग ध्यान से काम करने में कुछ समस्या है. तो वो 2-3 चीजें क्या हैं. पहली बात तो ये है कि जब बच्चा जो है एक ही चीज आराम से, दिल से, दिमाग से पूरी तरह वहां पर प्रेजेंट रहकर, जब एक काम चाहे वो 10 मिनट का हो चाहे 15 मिनट का हो, जब वो पूरे दिल और दिमाग को एक साथ बिठाकर अगर वो काम कर सकता है, दैट मीन्स बच्चे में कोई कंसंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है. प्रॉब्लम कहाँ है? जब मान लीजिए चाहे 10 मिनट का टास्क है, लेकिन उसमें भी कुछ बच्चे जो है बार बार उठते हैं या बहाने मारते हैं कि अरे मेरा पानी रह गया, अरे मेरा स्टेशनरी बॉक्स रह गया, मेरी नोटबुक रह गई, या फिर वो बोर हो जाते हैं, या आप बोल कुछ रहे हो वो किसी और दुनिया में पहुंच गए. तो जो स्विच करना कि 10 मिनट की एक्टिविटी या एक्सरसाइज में भी जब वो जल्दी जल्दी स्विच कर लेते हैं बच्चे,
एक से दूसरी चीज में पहुंच जाते हैं, उसको कहते हैं कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। वहां पे समस्या है, वो ध्यान देने की जरूरत है। और तीसरी बात क्या उन्होंने बोली कि एक ही बार में दो तीन चीजें अगर आप अपने बच्चे को करने को कह देंगे तो हो सकता है उसमें से वो मिस कर जाए, वो भूल जाए, वो उतना ध्यान ना दे पाए। आप बोल भी रहे हैं उसको, आप साथ साथ बोल भी रहे हैं तुम लिखो, उसको साथ साथ बोल भी रहे हैं कि अच्छा 5-6 चीजें मार्केट से ले आना। जब वो लौटता है तो 2-3 चीजें ही लाता है और फिर कहता है मैं भूल गया। तो कुछ बच्चे जब 2-3 टास्क एक साथ नहीं संभाल पाते तो उस वजह से जो है उसको भी हम कंसंट्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं कि वो ये हैंडल नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही। तो ये उन्होंने अब तक थोड़ा बताया कि कंसंट्रेशन प्रॉब्लम जो है Sapna, she है is क्या। back. यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस मैम। Okay, thank you, Sapna, for summing up so beautifully. I'm sorry the internet kind of conked off. सॉरी। So technology is issue. Also, last but not the least, कि जब भी आप अपने बच्चे को देखते हो तो आपको लगता है कि एक्चुअली वो आपकी बात सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है। तो उसके एक्सप्रेशंस हैं या समझने की जो हम नॉड करते हैं, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ तो कई पेरेंट्स में देख रही हूँ कि ऐसे नॉड कर रहे हैं। आपका बच्चा कोई तरह का एक्सप्रेशन ही नहीं करेगा, बस ऐसे ही देखे रहे, ठीक है। तो अदरवाइज उसके पैर हिलाते रहेगा, फिजिटिंग करता रहेगा, मतलब यू कैन इजीली मेक आउट दैट द चाइल्ड इज नॉट कॉन्सेंट्रेटिंग और समवेयर हैज concentration issues. All right. Thank you. Thank you so much, ma'am. As I have already summed up, like how do we identify like child is, facing this problem of concentration? And secondly, if I would ask you, like, what are the factors actually they affect concentration? बच्चे में concentration की समस्या आती क्यों है? बहुत सारे रीजंस होते हैं सपना। हाँ। बच्चे को ठीक से नींद नहीं हुई है। हाँ। The sleep is a big issue. If the child has not been able to sleep properly, the child has a concentration issue. घर में बहुत सारा झगड़ा होता है, बड़ी बड़ी आवाजों में बातें होती हैं, एक दूसरे को अब्यूज करना होता है, तब बच्चे का concentration नहीं रहता है। Also एक तरह का कुछ रूटीन नहीं होता है बच्चे का, जैसे कभी भी उठो, कभी भी सो, कभी भी खा लो, कभी भी पढ़ने को बैठ जाओ, कभी भी खेलो। तो अगर कोई तरह का रूटीन नहीं होता है तो concentration is surely going to get affected. अगर बच्चे को बहुत सारा नॉन हेल्थी फूड खाने की आदत है, जैसे बहुत सारा जंक फूड, कांस्टेंट जंक फूड पे जंक फूड, जैसे चिप्स है, फ्रेंच फ्राइज है, बर्गर्स है, ऐसे ही खाता है और घर का कुछ हेल्दी खाना नहीं खा रहा है बच्चा, तो भी उसके कंसंट्रेशन में अफेक्ट होती है, क्योंकि वो नीडेड न्यूट्रिशन नहीं जाता है बच्चे में। एंड व्हेन द नीडेड न्यूट्रिशन इज नॉट देयर, द चाइल्ड्स कंसंट्रेशन surely gets affected. अगर पानी भी ठीक से नहीं पिया होता है बच्चे ने पूरे दिन में, जितना रिक्वायर्ड बॉडी को चाहिए होता है, तब भी उसके कंसंट्रेशन में फर्क आता है। हाँ, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, बहुत बार मोबाइल पे खेल लिया, बहुत बार टीवी पे सीरियल्स देख ली या गेम्स खेल लिया कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, उसके कंसंट्रेशन को बहुत ही इफेक्ट होती है, बिकॉज वो माइंड एकदम इग्नाइटेड होता है और इग्नाइटेड माइंड कैन नॉट स्लीप वेल। इग्नाइटेड माइंड कैन नॉट स्लीप वेल, देन नॉट इवन स्टडी वेल, एंड इट्स काइंड ऑफ अ विशियस सर्कल। तो वहीं के वहीं वो घूमते रहते हैं। ऑल्सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ब्रोकन फैमिलीज हैं, या घर पे बहुत सारे डिफिकल्टीज है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज, फूड डिफिकल्टीज, और there's a gap between the parents and the child, that also affects a lot the concentration of a child. Yes. Thank you so much, ma'am, for simplifying, the factors for us. So I'll just quickly repeat कि बच्चा अगर अच्छे से सोया नहीं है, very important thing, ma'am, which you have mentioned, routine, and especially
इस पैंडेमिक में बच्चों के रूटीन बहुत ऊपर नीचे हुए हैं, जिसमें हम भी लगातार हमारे सेशंस में कहते आए हैं कि बच्चों का एक रूटीन होना चाहिए। स्कूल बंद है फिजिकली, दे आर नॉट गोइंग टू द स्कूल, बट घर पे जो उनकी क्लासेस चल रही हैं फिर भी टाइम से उठें, टाइम से खाएं। तो पेरेंट्स प्लीज, जैसा कि मैम ने बताया कि रूटीन की क्या अहमियत है कंसंट्रेशन में, इसको हम सबको समझना पड़ेगा। इसमें खाली बच्चे का ही दोष नहीं है, बिकॉज एनवायरनमेंट अभी हमारे आसपास बहुत ही वल्नरेबल हो रखा है सभी के लिए। एंड देन जंक फूड, जितने बच्चे मैगी खाते हैं रोज, चिप्स खाते हैं, और जो घर में खाना बनता है वो नहीं खाते हैं। तो प्लीज, जो भी आपके मम्मी पापा जो खाना बनाते हैं, दैट्स द बेस्ट फूड आई टेल यू। तो प्लीज वो खाना आप खाएं। कभी कभार आप जंक खा सकते हैं, बट नॉट ऑलवेज कि आप जो है हर दूसरे दिन जो है जंक फूड खा रहे हैं। एंड देन यस, अदर होम एनवायरनमेंट, एज यू प्रिसाइसली मेंशन मैम, लाइक घर में जो नॉइजी एनवायरनमेंट रहता है, या आपस में जितने भी तरह के कुछ रिफ्ट हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इश्यूज हैं, सो आवर सिंसियर रिक्वेस्ट टू आवर पेरेंट्स, सब में होते हैं, बट प्लीज थोड़ा सा इसका ख्याल रखें कि जब बच्चे हैं तो उनको इस तरह के एनवायरनमेंट की आदत हमको नहीं डालनी है, क्योंकि इससे उनके ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। So we'll move on to our next question, ma'am. As you have precisely touched in this answer only, that screen time, that digital, oh my God, effect of this pandemic, basically. So even ma'am, हमारे जो helpline है, parenting helpline, उस पे हमारे पास बहुत सारे calls आए हैं during this pandemic, जिसमें इसी तरह के issues को हमारी टीम ने address किया है कि बच्चे जो हैं ज़्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन इश्यूज हो रहे हैं। तो स्क्रीन टाइम का क्या किया जाए, इसके लिए प्लीज कुछ सिंसियर एडवाइस हमारे पेरेंट्स को आप दें, जिससे उनको थोड़ी मदद मिले। Absolutely, this is my favorite topic, Sapna. Please, So, स्क्रीन टाइम अभी पेंडेमिक से पहले भी ये बहुत बड़ा इश्यू था, और पेंडेमिक की वजह से भी ये बहुत बढ़ गया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पेरेंट्स कि आपके बच्चे जो स्कूल टाइम है उनका, जैसे 8 से 1 या 8 से 2, जितना भी स्कूल टाइम है, या 8 o'clock to 11 o'clock अगर प्री प्राइमरी सेक्शन में है, उसके सिवा मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप या टीवी से बच्चों को दूर रखिए। अनलेस आपका बच्चा टीनेजर है और उसको कुछ ऑनलाइन सर्फिंग करना है, तब जाके अलाउ करिए, वरना बहुत सारी चीजें हैं बच्चों के लिए घर में करने के लिए जहां पे आप स्क्रीन टाइम को अवॉइड कर सकते हैं। अनलेस, और क्लासेस में अगर आपने रखा है तो हर एक दिन पे एक क्लास अलाउ करिए। जैसे आज ड्राइंग है तो कल मैथ है तो कल कुछ और सब्जेक्ट है। हर रोज 2-2 पढ़ाई के सिवाय 2-2, 3-3 घंटा स्क्रीन पे इज अ स्ट्रिक्ट नो। आपका बच्चा फिजिकली एंड मेंटली हेल्दी नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, आप समझने की कोशिश करिए। जब भी आपका बच्चा टीवी ऑन करके कार्टून देखता है, कार्टून में चलो छोटा भीम देख रहा है, ओके, व्हेन द चाइल्ड इज वाचिंग छोटा भीम, और छोटा भीम पे दिखाते हैं जब मैंने लड्डू खाया मैं स्ट्रांग हो गया, मैंने मार दिया एक, ओके, दैट इज द थिंग व्हाट द चाइल्ड लर्न्स। अब चाइल्ड को अपनी बुद्धि यूज नहीं करनी है, कम्युनिकेशन यूज नहीं करना है, सो दैट्स अ वन वे कम्युनिकेशन। Now, what are the side effects of watching a lot of cartoons and a lot of TV? A, your child feels that come what may, I am the hero and I'll be the winner. Second, मैं कुछ खाऊंगा तो मैं strong हो जाऊंगा। अब वो कुछ खाने के लिए वो क्या मतलब वो निकालता है अपनी लाइफ में, वो आप और मैं दोनों समझ सकते हैं। तो आपको ये जानना जरूरी है कि वो कुछ खाने से वो सब्सटेंस क्या हो सकती है, you and me never know, right? बट वी श्योरली नो कि वो गलत है कि कुछ खाने से हमें एनर्जी आ जाती है, राइट? थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि वो टू वे कम्युनिकेशन नहीं सीख रहा है। नाउ व्हाट इज टू वे कम्युनिकेशन? राइट नाउ सपना एंड आई आर टॉकिंग टू ईच अदर, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, आपके बच्चे सुन रहे हैं, आप बहुत सारे हो जो यहाँ पे ऐसे भी कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, देयर इज टू वे कम्युनिकेशन। जबकि आपका बच्चा कम्युनिकेशन स्क्रीन देखता है, टीवी देखता है, वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। जब भी फिर आप कंप्लेन करोगे कि मेरा बच्चा बात नहीं करता है, मेरा बच्चा शेयर नहीं करता है, मेरा बच्चा स्कूल में क्या हुआ बताता नहीं है, बाहर जाके कुछ करके आया बताता नहीं, पर कैसे बताएगा, उसने तो सीखा ही नहीं है कि कम्युनिकेशन इज टू वे कम्युनिकेशन। तो बहुत जरूरी है
कि हम स्क्रीन टाइम को थोड़ा कंट्रोल करें, एक्सेप्ट स्टडीज एंड ट्यूशंस और क्लासेस, को करिकुलर एक्टिविटीज के सिवा स्ट्रिक्टली नो, एटलीस्ट टिल 10 to 11 years अगर आप कंट्रोल कर सको बहुत ही है, बिकॉज दैट इज द टाइम व्हेन योर चाइल्ड्स मेंटल हेल्थ इज वेरी, it has to be taken care, the physical health needs to be taken care. तो अगर आप ये टाइम संभालोगे 0 से 10 साल का टाइम, तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि स्क्रीन से बच्चा कुछ ज्यादा नहीं सीखने वाला है जितना आप एज अ पेरेंट सिखा पाओगे. सिंपल एग्जांपल है, मैं अगर बच्चे को दूध का ग्लास लेके टीवी पे नर्सरी राइम्स देख के उसको बिठा दूं एंड बोले तू दूध पीते पीते नर्सरी राइम्स देख, और उसका दूसरा अल्टरनेटिव है मैं उसको दूध का ग्लास देती हूँ, मैं भी सामने मेरा चाय या दूध लेके बैठती हूँ, हम बातें करते करते चाय एंड दूध पी रहे हैं, और वो बातें कैसी हो रही हैं, where does the milk come from, which is the, which are the regions which has the the cows and the buffaloes, कितनी तरह की cows होती हैं, what buffaloes, what do you get from milk, why do you have milk, milk के products क्या है. तो जो 10-15 मिनट आप बच्चे से बात कर रहे हो उसमें आप उसको जनरल नॉलेज दे रहे हो, जबकि आपका बच्चा नर्सरी राइम वहां पढ़ के या कुछ टीवी देखते हुए जो दूध पिएगा वो सीखने वाला कुछ नहीं है. तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि 10-15 मिनट की बात है, आप 10-15 मिनट देना शुरू करो, बच्चों को घंटे घंटे का टाइम. Okay, Sugda. Hello. Yeah, Sapna. Yeah, I think I'll just sum up till here by the time Yeah. maybe she's back. Yeah. तो थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है, that's okay. तो जैसा रिद्धि मैम ने बताया, बहुत इम्पोर्टेंट चीजें बताई हमारे लिए. पहली बात तो जो उन्होंने बताई सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, कम्युनिकेशन इज ऑलवेज 2 वे. 2 लोग जब बात करते हैं, और ये स्क्रीन टाइम से डिजिटली चीजों को देखने से, आई थिंक शी इज हियर. सो डिजिटली चीजों को देखने से जब बच्चा नर्सरी राइम ही भले ही देख रहा है कंप्यूटर पर, और या कोई भी तरह का कार्टून देख रहा है, तो इट्स ऑलवेज अ वन वे कम्युनिकेशन. वो सिर्फ सुन रहा है, सुन रहा है, सुन रहा है, वो कुछ बोल नहीं रहा आगे से, वो अपनी बात कुछ कह नहीं सकता उन कार्टून से या जो भी प्रोग्राम वहां पर चल रहा है. जब फैमिली मेंबर्स, पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, वो जब उसके सामने प्रेजेंट हैं, जो दूध पीने का एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि बच्चे को अगर आप दूध पिला रहे हो, तो अगर मम्मी जो है वो खुद भी अपनी चाय या दूध उसके साथ लेकर बैठ जाएं और फिर दूध के बारे में बात करें, थोड़ा बहुत बात करें, बेसिक इन्फॉर्मेशन. और इसके साथ मैं एक एलिमेंट और जोड़ना चाहूंगी रिद्धि मैम, जो आपने इतना सुंदर एग्जाम्पल दिया कि अगर बच्चा दूध पी रहा है तो अगर वो कार्टून ना देखे उस वक्त, दूध पीने को ही तो एंजॉय कर ले कम से कम, कि इसका फ्लेवर क्या है, इसमें मम्मी ने बॉर्नवीटा डाला है कि नहीं, हॉर्लिक्स डाला है या प्लेन दूध है, इसमें चीनी है कि नहीं. Let the child explore or just enjoy whatever he or she is eating or drinking. So that is also important, and it adds value actually to the entire process of having milk, or whatever he or she is having. तो जो मैम आप बता रहे थे उसमें मैं ये एक पॉइंट हाईलाइट कर रही थी, ऑनलाइन सॉरी, ये जो स्क्रीन टाइम है उसके बड़े होने से क्या दिक्कत है कि वो वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है. आपका बच्चा जो है वो सिर्फ नॉड कर रहा है, वो सिर्फ रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, रिसीव कर रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहा. व्हेन यू आर फिजिकली प्रेजेंट अराउंड हिम और हर, तो प्लीज हैव अ कम्युनिकेशन. दैट इज व्हाट इज मिसिंग बेसिकली दीज डेज. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम आपने हाईलाइट करा, एंड देन मिल्क एग्जांपल वाज फैबुलस. एंड सेकेंडली डेफिनेटली जो एज ग्रुप आपने मेंशन करा 0 to 10 years, ये बहुत ही फ्रेजाइल और बहुत वैल्यूएबल टाइम है, बिकॉज डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स आर आल्सो अटैच्ड टू दिस एज ग्रुप. तो उसमें इन सब छोटी छोटी चीजों का अगर हम जितना ध्यान रख पाएंगे, तो बच्चा जब बड़ा हो रहा है उसको इतनी डिपेंडेंसी आप पर नहीं होगी या किसी और पर नहीं होगी, बिकॉज उसकी फाउंडेशन जो है वो इतनी स्ट्रांग हो चुकी होगी. So Riddhi ma'am, over to you. You were like talking and sharing some more points. Please. Yes. So I was saying that, and please excuse me for all the internet problems. That's okay. That's okay. We can understand. No problem. Also, it is important कि जब भी आपका बच्चा, online, as I was saying, it's a 2 way communication. Right. अगर आप
टाइम उसको कहीं और चीजों में लगा सकते हैं तो बहुत ही इट विल बी वंडरफुल. Now, what are the things you can do to kind of keep your children engaged? मैं कुछ कुछ टिप्स देना चाहूंगी आपको जिससे you can help your children to be really involved in things which is just beyond the screen. आप जो भी काम कर रहे हो उसमें अपने बच्चे को इन्वॉल्व करो. ठीक है, अगर आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल रहे हैं, लॉन्ड्री कर रहे हैं. हेलो. यस. No, nothing. You please carry on now. ओके. सो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जैसे लॉन्ड्री कर रहे हैं, तो बच्चे को लॉन्ड्री के लिए लेके चलिए. मतलब उसको बोलिए कि तू ये कपड़े तू ले ले, मैं ये लेता हूँ. तो यूर इन्वॉल्विंग. अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे 3 years 4 years एंड यू फील दैट योर चाइल्ड इज लिटिल डिस्ट्रैक्टेड, आप उसको किचन में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना. कैसे किचन में इन्वॉल्व करेंगे? आप जो भी भाजी तरकारी कर रहे हो उसको थोड़ा सा भाजी तरकारी दे दो, जैसे धनिया है, जैसे बिन्स है, कुछ भी दे दो. एंड आस्क द चाइल्ड टू प्लक इट विथ हैंड्स. उसकी फाइन मोटर स्किल्स बनेगी एंड कंसंट्रेशन बढ़ेगा, क्योंकि आपने उसको बताया कि छोटा छोटा काटना, तो वो साइज लेके काटेगा हाथ से. Here you are developing your child's concentration, and second, your child's fine motor skills are improving. So fine and gross both are improving. ठीक है. अगर आपने छोटा सा आटा जो आप बना रहे हो रोटी के लिए, उसको छोटा सा आटा दे दो, थोड़ा सा हल्दी डाल के आटा दे दो और प्लेन आटा दे दो, उसको बोलो इसमें से कुछ बना. जैसे हल्दी वाला येलो हो जाता है, प्लेन आटा व्हाइट हो जाता है, तो उसमें से वो कुछ 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 बना सकता है. एंड दिस इज हाउ योर चाइल्ड इज गोइंग टू एंजॉय. आप बच्चे को आपके घर में अगर पौधे हैं, अगर गमला है और छोटी कुछ मिट्टी भी आप अरेंज कर सकते हो 5-10 रुपीस की, घर में टमाटर को ऐसे स्मैश करके उसमें डाल दीजिए, चिली डाल दीजिए, लेट इट ग्रो. जैसे हम स्कूल में एक एक्सरसाइज करवाते हैं, कॉटन डाल के, हम मूंग डाल के, मस्टर्ड सीड्स डाल के बच्चों को सिखाते हैं व्हाट इज गार्डनिंग, हाउ डू यू डू दैट. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट काइंड ऑफ improves concentration, it improves the patience of a child, and third important thing is कि आपका बच्चा स्क्रीन से दूर है. So आपको वो सब कुछ करना है जिससे आपका बच्चा स्क्रीन से दूर रहे. बहुत सारी चीजें लाइफ में करने की है. आपका घर जैसा है उसको एक छोटे से कॉर्नर में, बड़ा है छोटा है जो भी है, एक छोटे से कॉर्नर में रीडिंग कॉर्नर बना दीजिए. आप भी मैगजीन, न्यूज़पेपर या बुक लेके बैठिए, आपके बच्चे को भी उसमें इन्वॉल्व करिए, बुक या मैगजीन या कुछ भी लेके बैठने के लिए. रीडिंग टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट. उस टाइम जितना आपका बच्चा 1 वे कम्युनिकेशन में है, यहाँ पे आप 2 वे कम्युनिकेशन करके आपके बच्चे के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं. हाउ डिड यू फाइंड द बुक, व्हाट वाज द बुक अबाउट, क्या किस चीज के बारे में था, what did you learn, what was the moral of the story that you learned, and आपने क्या पढ़ा, आप एक दूसरे के साथ डिस्कस कर सकते हैं. And this is how your child learns to express, to share, to learn to read and to share with you. आपको नहीं पता आपका बच्चा शायद नेक्स्ट यूट्यूबर भी हो सकता है, आपको नहीं पता आपका बच्चा शायद कोई राइटर या भी हो सकता है, पर आप सिखाओगे तब भी उसको समझ आएगा ना. स्क्रीन टाइम से हर चीज नहीं सीखी जाएगी, कहीं ना कहीं आपको स्क्रीन से दूर रख के बच्चों को थोड़ा इन्वॉल्वमेंट लेना पड़ेगा, करना पड़ेगा, लेना नहीं पड़ेगा, सॉरी, करना पड़ेगा. So you'll have to have some quality time. Children don't want your quantity time like 3 hours 4 hours. हम बच्चे के साथ बैठे रहो. Children are not looking forward to that. Children are looking forward to half an hour 45 minutes जहाँ पे आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुक भी नहीं कर रहे हो, घर का काम नहीं कर रहे हो, मोबाइल के साथ नहीं हो, अपने हस्बैंड के साथ नहीं हो, अपनी वाइफ के साथ नहीं हो, या कहीं डिवाइडेड नहीं हो, टीवी नहीं देख रहे हो. आप अपने बच्चे के साथ बैठ के कुछ कर रहे हो, पढ़ा रहे हो या कुछ सिखा रहे हो, जो भी कर रहे हो, बट आप मिल के कर रहे हो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you so much, ma'am, for these valuable suggestions. Seriously, they are eye opener. And मैं इसको बहुत जल्दी से बस 2-3 चीजें हाईलाइट करना चाहूंगी इसमें जो आपने सजेशंस दिए. पहली बात जो आपने इन्वॉल्वमेंट की है, आई थिंक दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट माय डियर पेरेंट्स, क्योंकि बच्चे को आप छोटी छोटी चीजों में, टिप क्या है कि अपने घर के कामों में इन्वॉल्व करो. एज मैडम सेड, लाइक आप किचन का कोई काम कर रहे हो, उसको थोड़ा सा आटा दे दिया आपने कुछ बनाने के लिए, लाइक क्ले बच्चे करते हैं, क्ले से भी खेलते हैं,
और उसमें उसका पेशेंस भी इम्प्रूव होगा, कंसंट्रेशन भी इम्प्रूव होगा, क्योंकि आपको तो खाना बनाने में थोड़ा समय लगेगा, तो वो क्या है, he or she will wait for your turn to share whatever you are doing, whatever you have done, and the process में इन्वॉल्व करना घर की चीजों में, that is number 1. एंड सेकेंडली जो कॉर्नर की बात की मैम ने, रीडिंग कॉर्नर बना दिया घर में या ड्राइंग कॉर्नर बना दिया, उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बात हाईलाइट करने की यहाँ पर ये है कि आप खुद भी चाहे 10 मिनट या 15 मिनट अपनी कोई फेवरेट मैगजीन या कोई न्यूज़पेपर लेके ही बैठ जाओ, या कुछ ऐसा जो सिर्फ आप देख रहे हो, कोई पिक्चर्स की कोई मे बी बुकलेट है या कुछ ऐसा जो आपकी इंटरेस्ट का है, जरूरी नहीं है कि आप उसकी किताबें पढ़ें, बच्चे को अपनी किताब पढ़ने दें, और आप अपना जो है न्यूज़पेपर में भी पढ़ लीजिए, कोई कलरफुल कोई बुक देख लीजिए, या फिर जो है कोई मैगजीन अगर जो पढ़ते हैं तो वो पढ़ लीजिए, तो उसमें आप एक दूसरे के साथ फिर शेयर करें, अच्छा मैंने ये पढ़ा, मैंने ये देखा, तुमने क्या पढ़ा, अच्छा वो क्या कर रहा था कहानी में, यू नो, सम काइंड ऑफ इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरेक्शन एज शी सजेस्टेड. और सबसे सबसे अहम बात यहाँ पर मैं एक एग्जांपल मैम आप सबसे शेयर करना चाहूंगी, आपकी इस बात से मुझे याद आया अभी, रिसेंटली हमारा एक स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम चलता है परिसर आशा का फॉर डिफरेंट एज ग्रुप, जिसमें लैंग्वेज एक्सपर्ट अपने क्लासेस करते हैं टू टीच द कॉन्सेप्ट, और मेरी भी उसमें क्रिएटिव क्लासेस रहती हैं, लाइक हाउ क्रिएटिवली दे कैन यूज द लैंग्वेज एंड प्रेजेंट देयर आइडियाज. तो अभी स्टैंडर्ड 1 एंड 2 के बच्चों के साथ वेजिटेबल्स सब्जेक्ट था, तो मैंने उनको बोला था कि पूरा एक हफ्ता है अपने पेरेंट्स के साथ कुछ तो भी आपको खाना बनाना है, whatever they are cooking, you just be part of it, okay, and then you share the recipe and your experience with us कि आपने कैसे बनाया, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले और क्या. ओ माय गॉड, वो क्लास का जो पूरा एंड प्रोडक्ट था, दैट वाज सो फैंटास्टिक, क्योंकि बच्चे इतने एक्साइटेड थे. इवन आई टुक पेरेंट्स रिस्पॉन्सेज ऑल्सो, तो उन्होंने कहा कि पहली बार इन्होंने जो है अपने पापा के साथ जो है ये पिज्जा बनाया, या पापा के साथ जो है ये चपाती बनाई, इवन पापा लव्ड इट कि बाबा अरे ये तो प्रोसेस बड़ा अच्छा है. हालांकि सिंपल सी बात है, सिंपल सा आइडिया है, बट जब वो इन्वॉल्व हुए तो उन्होंने जेन्युइनली उसको एक्सपीरियंस किया. आई थिंक दैट्स व्हाट मैडम इज सजेस्टिंग. तो प्लीज छोटी छोटी सी चीजें हैं जिसमें जब आपका बच्चा आपके साथ आपका साथ देगा, तो एक तो आपकी मदद होगी डेफिनेटली, और दूसरा जो है आपका जो है इन्वॉल्वमेंट और इंटरेक्शन एक दूसरे के साथ जितना बढ़ेगा, तो स्क्रीन वाला जो मसला है, स्क्रीन का जो इशू है, उससे काफी हद तक हमें मदद मिल सकती है, बिकॉज यू आर देयर टू be part of your child's life. That is most important. Absolutely. Yeah, thank you Riddhi ma'am for this. And इसी के साथ हम एक हमारी फिल्म है परिसर आशा की, जो हमने खुद जो हम करिकुलम डिजाइन करते हैं और इंटरेस्टिंग वर्कशीट्स बनाते हैं बच्चों के लिए, ताकि क्योंकि अभी वो घर पर हैं, तो कैसे हम होम स्कूलिंग को भी सपोर्ट कर सकें, क्योंकि पेरेंट्स घर पर हैं, तो किस तरह से खूबसूरती से बच्चों को एंगेज कर सकते हैं इंटरैक्टिवली, लाइक विद वर्कशीट्स एंड प्लान्स, और स्कूल में भी डेफिनेटली वी प्रोवाइड आवर मटेरियल. तो उस पर एक छोटी सी फिल्म हमारी है जिसमें बहुत से तरीके हैं कैसे बच्चों के कंसंट्रेशन लेवल्स इंप्रूव हो सकते हैं. इफ यू अलाउ अस, so we would like to present that film, ma'am. Yes, please. Yes, please. Sugdha, can we have the film, please? White queen. Circle the queen. Mouse house. Circle the house. Plus 2, 3. 2 plus 2, 4. 2 plus 1, 3. I see a bug. The box is brown. I see a bug in the box. The
The sweets are in the jar. That in a letter. We learn this once, we never forget, and learning becomes more interesting. So, we would like to give a sincere thanks to Producer Asha for providing us with exciting and amazing worksheets. Wow. Thank you Sukta. तो पेरेंट्स, डियर पेरेंट्स, ये हमारी वर्कशीट्स हैं जो हम बच्चों के लिए डिज़ाइन करते हैं बहुत मेहनत से, हमारे डिज़ाइनर्स, जिसका एम यही है कि बच्चे जो भी हम अभी तक इस सेशन में कंसंट्रेशन की बेसिकली मेजरली बातें कर रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है जॉयफुली मज़े मज़े में अच्छे से हंसते खेलते हुए घर पर भी आराम से पढ़ पाएँ और उसमें आप उनकी मदद कर पाएँ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो उसके लिए हम जो है ये वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं और प्लान भी प्रोवाइड करते हैं और पेरेंट्स के लिए कुछ ट्रेनिंग भी ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, ताकि अगर आपको कुछ समस्या है, कोई जानकारी चाहिए या समझ में नहीं आ रहा, आपकी हेल्प के लिए हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो आपके साथ जूम पर या जिस तरह से अभी हम ये सेशन कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हम वो सेशंस भी करते हैं, ताकि हम पेरेंट्स की भी मदद कर सकें बच्चों के साथ साथ। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल जो हमने एड्रेस दिखाया था परिसर आशा की वेबसाइट का www.parisarasha.com, उस पर जाकर जो है आप अपने बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं और किसी भी तरह की हेल्प असिस्टेंस हमारी तरफ से चाहिए हो तो हम बिल्कुल आप तक पहुंचाएंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल के साथ, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स कि बच्चे मैम जब बच्चों में कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम आ जाता है तो उसके क्या रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है, लाइक व्हेन यू नो चाइल्ड इज लैकिंग कंसंट्रेशन। रिस्क फैक्टर तो बहुत ही होगा ना सपना, बिकॉज जब भी बच्चे में कंसंट्रेशन नहीं होगा, आप जो उसको लाइफ स्किल्स सिखाना चाह रहे हो या आप कुछ वैल्यूज इम्बाइब करना चाह रहे हो बच्चे में या कुछ भी आप सिखाना चाह रहे हो, बच्चा सुन ही नहीं रहा है, सीख ही नहीं रहा है आपसे। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हेन द चाइल्ड इज नॉट कॉन्स्टेंटली फोकसिंग, कहीं अदर इश्यू तो नहीं है, वो भी हमें चेक करना है। इसके भी डिफरेंट हो सकता है चांसेस। ऑल्सो बच्चे की कहीं मेंटल हेल्थ इफेक्ट नहीं हो रही है कि आपका बच्चा वहां है आपके साथ बट आपका बच्चा सुन नहीं रहा है क्योंकि शायद दो रीजंस हो सकते हैं, वो कहीं प्री ऑक्यूपाइड है या फिर कुछ चीजें उसको बॉदर कर रही हैं। और जब बॉदर कर रही है तो हमें और आप और मुझे दोनों को पता है कि कोई चीज कोई बॉदर करती है कॉन्स्टेंटली, उसकी वजह से हम स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं। आर योर चाइल्ड स्ट्रेस्ड आउट? इज योर चाइल्ड worried? Is your child lacking in confidence? वो सब भी हो सकता है। तो कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है बच्चा, उसकी वजह से मल्टीपल चीजें हो सकती है। अच्छा, आप उसको कहीं और भेज रहे हो, समझा रहे हो कि यहाँ से यहाँ जाना है, बच्चे ने नहीं सुना है, बच्चे इज क्लूलेस, करना क्या है? मैंने देखा है कई बच्चे जो रोड पे जाके अब क्या करूं, I mean, what do I do next? मुझे क्या करना था, मम्मा ने क्या बोला था, पापा ने क्या बोला था, नहीं याद होता है, because they are preoccupied with their other things in mind and lot of the children. So उसकी concentration नहीं होने के भी बहुत सारे negative things हो सकती हैं।
right? Right, So the right, right. child is affected. कई बार बच्चा concentration नहीं की वजह से सुनता नहीं है. आप कई बार बोलते हो आगे मत जाना, आप जल जाओगे, गैस चालू है, ये चालू है, वो सुनता नहीं है, वो he buns, right? Right. So many things can happen when your child is not concentrating. Focusing goes hand in hand. Correct. तो जरूरी है कि जो भी बच्चा आपका कर रहा है वो उसमें है नहीं है. Right, right. Yes, thank you, ma'am. So yes, जैसा कि हमने बताया कि चाहे आपके पास कितना भी फैंटास्टिक टीचर हो या आपके पास बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स हो, engaging activities हो, unless your child is able to focus, unless your child's level of concentration is appropriate, तो फिर वो उसको सीखने में, लर्निंग में डिफिकल्टी जरूर होगी. तो इसीलिए रिस्क फैक्टर तो बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका बच्चा ना अच्छे से सीख पाएगा और ना किसी चीज में अच्छे से शामिल हो पाएगा जो कि वो हो सकता है. तो इसीलिए आइडेंटिफाई करना जरूरी है ताकि उस पर काम किया जा सके. तो इसी से हमारा मैम अगला जुड़ा हुआ क्वेश्चन है जो आपने पहले हालांकि इसके बारे में बात की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द फैक्टर्स ऑफ lack of concentration. So you have mentioned like couple of children, like when they cannot do multitasking, when there are so many tasks given to them and then they get confused, and then if they have poor concentration तो हो सकता है फिर वो एक भी काम अच्छे से ना करें, right? So with multitasking, so my question is multitasking or lack of proper time management related to lack of concentration? First, I would say that multitasking is something which is a strict no-no for women, for children, everybody. What I meant while I was talking about the word multitasking कि जब भी आपका बच्चा कुछ कर रहा है और साइड में अगर आप कुछ बता रहे हो तो वो हम सुनते हैं. जिस बच्चे का कंसंट्रेशन कम होता है वो सुनता नहीं है, वो एक ही चीज में फोकस कर सकता है. वो दो चीज में साथ में फोकस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. Right, so that is where I meant multitasking. But there are people who do multiple things. Phone hai, ye hai, wo hai, sunta hai, wo sunta hai, and that is completely detrimental to your mental health. Right. So multitasking is a strict no-no. Time management, yes. Then lack of time management can be one of the reason in lack of concentration. Because why? जब भी आपका टाइम मैनेज नहीं होता है, आपके पास बहुत सारी चीजें अचानक से आ जाती है एंड थिंग्स आर नॉट स्केड्यूल्ड, राइट? तो वो स्केड्यूल के हिसाब से नहीं होता है, तो ऑटोमेटिकली यू टू मेनी थिंग्स, होमवर्क भी करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, नीचे खेलने भी जाना है, फ्रेंड्स बाहर आके खड़े हैं, यू आर ब्लैंक, एंड दैट्स वेयर the concentration is just zero, because आपको खेलने भी जाना है, आपके बच्चों को वर्क भी करना है, आप भी कुछ बोल रहे हो, so there are multiple things happening at a stretch. Right. So lack of time management is certainly can hamper the concentration of the child. Yes. So I think what you have just mentioned, because there are so many things going on at one point of time, so it can create anxiety also, like how to manage, what to manage, how many things I have to look after, right? Huh? So that anxiety, now anxiety is altogether a different thing. Okay. But okay. Yes, बहुत सारी चीजें एकदम हो जाता है साथ में, like lot many things to handle all of a sudden, right? Imagine you have a test tomorrow and you have to prepare for the test, plus you have lot of homework to be done, plus आपको खेलने भी जाना, आपके friends बेल पे बेल बजा रहे हैं, खेलने कब आ रहा है, everything is together. Parents बुला रही है, okay ये लाना है, वो लाना है, इसका फोन है, वो उसका फोन है, so many things happening. Some children who are not able to manage might go anxious. Now what will happen? And that's where they said, okay, मुझे नहीं करना है. Correct. And because they feel very claustrophobic. They feel very surrounded with issues and problems. Right. So, all right. Thank you, ma'am, for this, and big thank you for differentiating and clearing the meaning of multitasking here, because उसमें हम कई बार confused हो जाते हैं. Even I got confused when I was asking question, but there is now so much of clarity.
तब आप मल्टीटास्किंग के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात कर रहे थे और यहाँ So पर हम often सपना बोला जाता है कि women are multitaskers. हाँ, हाँ. Okay, but if you see that when we are multitaskers as women, we are very stressed out. We are very kind of tired by end of the day. Physically से ज्यादा हम mentally tired हो जाते हैं because we are thinking and working on multiple fronts. Yeah. That multiple fronts is strict no. That affects your mental health. Correct. Thank you so much, ma'am, for this insight. And now we are moving to our next question. Like some of, can you please suggest us like couple of exercises or tips for our children specifically to improve their concentration? Oh yes, too many things. Please. आपके बच्चों को ना पेरेंट्स गार्डनिंग का शौक लगा दीजिए. आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना कंसंट्रेशन रिलेटेड वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी. व्हाई? बिकॉज आपका बच्चा, इमेजिन इतना सा टमाटर अगर मुझे उसको सो करना है, आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड ईच डे as it come up, as its small leaves been seen or plant aaya hai. So I'm so enthusiastic about things. My energy levels are high. Okay. Second, while I'm sewing, while I'm making mitti ke layers, I am using a lot of concentration itself. I'm using a lot of patience. Also, हर रेज आपको अगर आप देखने जाओगे, आज हुआ कल हुआ, बच्चे को पता चलता है that everything has its own process, and that process kind of inculcates patience in a child. Okay, so gardening is something is I think it should make compulsory for all the children. It is very very beneficial. दूसरा, जब आप गार्डनिंग कर रहे हो तब आप अपने बच्चे के साथ स्क्रीन से दूर रख रहे हो, आप बात कर रहे हो कहाँ का प्लांट है, इस प्लांट से क्या हो सकता है, which region it grows, and multiple things you can talk to the child. Okay, the vitamin factor and lot of things you can talk to your child about. Second important thing is सोने से पहले रात को लाइट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ऑन करना शुरू करिए. और अगर आपके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं तो उसको सुलाते वक्त ना ऐसे पॉजिटिव टच स्ट्रोक्स देके लाइट म्यूजिक ऑन करके सुलाइए. उसके दो चीज उसकी होगी. एक, म्यूजिक वर्क्स ऑन द सबकॉन्शियस माइंड, सो आपका बच्चा ऑटोमेटिकली रिलैक्स हो जाएगा और जो उसका माइंड जो क्लटर्ड रहेगा वो धीरे धीरे डी क्लटर होता जाएगा. और आपको जब म्यूजिक सुन रहे हो ना, बच्चे को बोलना आंख बंद रखे. आप भी कर सकते हो बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल्सो. Second thing, जो आप टच दे रहे हो, that is going to give a sense of security, a sense of acceptance to your child, a sense of belongingness to the child कि हाँ मेरे पेरेंट्स मेरे हैं, मेरे पास ही हैं. So कई बार आप देखते हो बच्चे रात को उठ के रोते हैं, चिल्लाते हैं, बातें करते हैं. There's a sense of कुछ डर गए हैं, कुछ देख लिया है, कुछ भी होता है, किसी ने डांट दिया है, कुछ बोल दिया है, तो वो माइंड में रहता है. म्यूजिक और आपके पॉजिटिव टच से वो कम होते जाएगा. एंड म्यूजिक हेल्प्स टू इंक्रीज कंसंट्रेशन. ठीक है, तो आपका डबल पर्पस सॉल्व होता है. तो आप म्यूजिक ऑन कर सकते हैं. थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि मेक अ पॉइंट कि आप एक तरह का स्केड्यूल बनाओ आपके बच्चे के लिए. कभी भी उठना, कभी भी सोना, कभी भी खाने का. जैसे मैंने कई पेरेंट्स को देखा है, भूख लगी कि वो खा लेगा मैम, खुद से खा लेगा. या लंच नहीं मैम, वो तो ऐसे ही करता है, वो तो स्नैक्स ही खाता है. ऐसे नहीं होता है. हर एक चीज का एक स्केड्यूल होता है, वरना लंच डिनर स्नैक्स तो नहीं होता ना. हम भी कहीं भूख लगते सीधा खा लेते थे. ऐसे नहीं होता है. देयर हैज टू बी ब्रेकफास्ट, देयर हैज टू बी लंच, देयर हैज टू बी डिनर. बीच में भूख लगे तब भी स्नैक्स होता है. सो देयर हैज टू बी अ सिस्टम एंड प्रोसेस और सम स्केड्यूल ऑन प्लेस कि बच्चे को पता चले कि इस टाइम पे ऐसा होता है. हम ऐसे तो नहीं बोलते ना कभी नींद आएगी तो सो जाएगा, कभी नींद आएगी तो उठ जाएगा. ऐसे नहीं होता है. 4 बजे उठ के बच्चा बैठ जाएगा तो आप क्या करोगे? आपकी नींद खराब होगी. राइट. तो आपने प्रोसेस डाला है ना कि 10 बजे सोना है और सुबह 7 बजे उठना है. क्यों? बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट. इसी हिसाब से आपको बच्चों को एक स्केड्यूल में डालना है. एक प्रोसेस होनी चाहिए, एक टाइम में करना है कि ये टाइम से ये होता है. आधा घंटा यहाँ वहां ठीक है, उससे ज्यादा नहीं. ठीक है. फिर आप ये 3 चीज इन्वॉल्व करो. म्यूजिक है, पॉजिटिव स्ट्रोक्स है जैसे. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कॉन्सेंट्रेशन में बहुत हेल्प करती है, बच्चे से बुलवाओ, बच्चों से बात करो.
ठीक है, आपका बच्चा जब बहुत बॉटल्ड अप रहता है इमोशंस के साथ, तब उसके कंसंट्रेशन पे बहुत बड़ा हार्म होता है। तो आप क्या कर सकते हो, आपके बच्चे के साथ 1 या 2 twice in a week you can sit and talk about the child's emotions and feelings. हम क्या करते हैं, स्कूल खत्म होती है ना, क्या हुआ, अगर बच्चा रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्या हुआ, ऐसे क्यों रो रहा है, लड़की की तरह रो रहा है, हम ऐसे बातें करते हैं जो हमें बहुत अवॉइड करनी है। हमें ये बोलना है, कुछ हुआ है क्या। हमारा टोन, हमारी क्वेश्चन बहुत सिंपल होना चाहिए कि बच्चे को लगे कि माय पेरेंट वांट्स टू अंडरस्टैंड फ्रॉम मी एंड नॉट प्रोबिंग। हमें वो बुलेट की तरह शूट नहीं करना, ठक 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 नहीं जाना है, हमें उसको एक्चुअली ऐसा माहौल क्रिएट करना है कि आपका बच्चा बात करे। अच्छा, मुझे लग रहा है तो आज अपसेट है, कुछ हुआ क्या। गिव अ इमोशन एंड फीलिंग टू योर चाइल्ड, बिकॉज आज ज्यादातर बच्चों को इमोशंस, फीलिंग्स, नाम नहीं पता होता है। उनको 2 ही चीज पता है, गुड एंड बैड, सैड एंड एंगर, उससे ज्यादा कुछ नहीं पता होता है। आपके 159 160 टाइप्स के इमोशंस, फीलिंग्स होते हैं। आप बच्चों से बात करो, उसको इमोशन दो, उसको समझाओ, ठीक है। दैट विल हेल्प योर चाइल्ड टू एक्सप्रेस। आपका बच्चा जब एक्सप्रेस करना शुरू करेगा तब उसमें वो बॉटल्ड अप इमोशंस नहीं रहेंगे, और जब इमोशंस नहीं रहेंगे आपके बच्चे का माइंड डीक्लटर रहेगा। जब डीक्लटर रहेगा तो वो जो भी काम करेगा उसमें आपके बच्चे का कंसंट्रेशन रहने वाला है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही अच्छी टेक्निक है, मैं तो बहुत करती हूँ मेरे बच्चे के साथ, शायद आप भी कर सकते हो। कभी कभी ऐसा लगे ना कि बच्चा बहुत टायर्ड लग रहा है, कि उसका कंसंट्रेशन नहीं है, और आपको लग रहा है कि नहीं, इट्स नॉट वर्किंग आउट, कोई भी म्यूजिक ऑन करिए, आप भी खड़े हो जाओ, आपके बच्चे को भी खड़े करो और शेक ऑफ योर बॉडी, ठीक है, ऐसे शेकअप 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 शेकअप, ऐसे बॉडी बॉडी, ऐसे डांस डांस काइंड ऑफ शेक ऑफ। हाँ दक्ष, आई कैन सी यू डांसिंग, परफेक्ट, वेरी गुड। तो ऐसे ही करके ना बस शेक ऑफ करवाइए, ठीक है। जब आपका बच्चा शेक ऑफ करता है, उसका माइंड कंप्लीट डिक्लटर हो जाता है, वो द चाइल्ड इज इन हियर एंड नाउ। तो कहीं आपका बच्चा कुछ पास्ट का सोच रहा है या फ्यूचर का कुछ सोच रहा है, वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। आपका बच्चा इज इन हियर एंड नाउ, और जब बच्चा आपका हियर एंड नाउ में है, अभी के मोमेंट में है, और तब आप कुछ उससे बात करोगे या पढ़ाओगे या कुछ भी करोगे, that's going to work wonderful for your child, right? So छोटी सी टेक्निक है, shake off is something which every parent should be doing with the children. In fact, if you are an educator, आप अपना बच्चों का डे प्रेयर्स, कभी प्रेयर्स करवा लो, एंड कभी कभी इससे भी आप शुरू कर सकते बच्चों का दिन। तो अगले दिन कुछ घर में झगड़ा हुआ है, बच्चे की नींद नहीं हुई है, या कुछ खाया नहीं है ठीक से, बट आप शेक ऑफ करवाओगे तो वो आपका स्टूडेंट इज इन हियर एंड नाउ, एंड व्हेन द चाइल्ड इज इन हियर एंड नाउ, देन यू स्टार्ट द स्टडीज, योर स्टूडेंट इज गोइंग टू लर्न वंडरफुली and in much better way. Thank you, ma'am. If I just quickly sum up your insights with my understanding and add to the point for teachers also. I think in this answer you have collectively given the suggestions and advice for our children also, parents also, and our educators also. That was wonderful. Like, as you said, gardening, yes. And second, like that music, importance of music, ma'am, that's really, really a very wonderful suggestion, dear parents, because madam has, suggested this tool with 2 important ideas. एक तो बच्चा relax होगा, हम जो importance of relaxation है, this is really important, I think, ma'am, as you correctly said, to understand for our teachers and for our parents also, कि बच्चे को रिलैक्स करने के हमें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ेंगे, जो कि बहुत जरूरी हैं अपने एक रूटीन में। तो वो रिलैक्स होगा। हाँ, और वो जो सेंस ऑफ टच उन्होंने बोला, छोटी सी बात है, बट दैट रियली वर्क्स, कि वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, दैट्स रियली इम्पोर्टेंट। नाउ सी फॉर मी ऑल्सो, अभी देखिए मैं तो आई एम नॉट लाइक इन प्री प्राइमरी और लाइक यंग चाइल्ड, बट अभी तक मैं जब सोती हूँ तो मुझे ऐसा उस कमरे में लगता है कि हाँ, दैट माय पेरेंट इज देयर, और लाइक ओके, हिज और हर थॉट्स आर अराउंड मी, और टीचिंग्स आर विद मी, तो वही मुझे इतना सेंस ऑफ सिक्योरिटी देता है। तो अब जब आप फिजिकली बच्चे के साथ प्रेजेंट हैं,
तो सिर्फ आपका एक टच कितना ज्यादा उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंग करवा सकता है. So this tip was Sapna, really. before I miss, there are 2 more things which I think that parents can do at home. Parents अपना छोटी छोटी चीजें एक बॉक्स में या बैग में भर सकते हैं एंड वो पूरी एक बड़ी सी थाली में उसको रख दीजिए. Show everything to your child and then put it in the bag, right? And ask your child, what had you put it up? What had you put it in the thali? And क्या-क्या चीजें थी? It's a memory game, right? And memory game works wonders to increase concentration. Blocks हैं, memory games हैं, फिर you know name place जो हम पेपर पे खेलते थे जब छोटे थे, वो भी खिला सकते हो आप. This all things leads to amazing concentration. पिक्शनरी है, जैसे आपने कुछ ड्रॉ कर दिया और बच्चे को बोलो इसको कैसे आप 1 वर्ड में आप बताओगे. That's where the mind is working and that's where the concentration also increases. So use छोटी छोटी चीजें हम कर सकते हैं जो घर पे बैठ के, and there is no investment, there's time investment of only half an hour. तो आधा घंटा हम क्या 40 minutes बच्चे को अगर देना शुरू करेंगे, उसको बहुत अच्छा इम्पैक्ट उसके ऊपर पड़ेगा. Right. Thank you ma'am for these 2 more tips. लाइक किस तरह से हम बच्चे को बेसिकली इन्वॉल्व करें. और जो रूटीन की बात आपने की, आपने रूटीन की बात पहले भी की थी, और रूटीन से मैं यहाँ बस एक वर्ड, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं जोड़ना चाह रही हूँ फॉर आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स टू अंडरस्टैंड पैटर्न. कि वो एक पैटर्न में जब आप अपने बच्चे को ले आएंगे तो उसके माइंड को उसकी आदत होगी कि ये एक पैटर्न है, इसमें ऐसी चीजें कर रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, अभी जूम क्लासेस शुरू हुए तो किसी कोई भी फेमिलियर नहीं था जूम क्लासेस से. अभी मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, दे आर सो अकस्टम्ड विद दिस पैटर्न कि मुझे ऐसे बैठना है, मेरा चेहरा दिखना चाहिए, अच्छा टीचर इज वाचिंग मी, अच्छा आई कैन से हेलो टू माय टीचर, इफ आई वेट so she will respond. You know, these are the mechanisms children are learning. So because of this pandemic situation, we have created a pattern for them along with the routine setup. तो पैटर्न जो है बच्चे के दिमाग में रहता है और उसकी फिजिकल बॉडी में भी आ जाता है. तो फिर उसको ये आदत होती है कि हाँ ये मुझे ऐसी चीज करनी है, या इसका इफेक्ट ये होगा. या जो आपने वो शेक ऑफ योर बॉडी वाला जो एक टिप बताया, एब्सोल्युटली यूजफुल. क्योंकि जब हम टीचर्स के साथ वर्कशॉप करते हैं मैम, तो मैंने जब भी हाल ही में टीचर्स के साथ वर्कशॉप किए एंड लुकिंग एट यू नो their struggle of conducting online classes and retaining the concentration level of children in the classroom of 30-minute or 40-minute online, you know. So that's the biggest challenge. So I have also given them this tip of like use mindful mind breaks, because when children are, you know, involved mindfully doing any activity, they're just jumping, then, you know, they are totally involved and they immediately get relaxed and they are there with you. So this tip is extremely useful given by you ma'am, and parents please, ये सिर्फ बच्चा ऐसे कूद नहीं रहा है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है हमारे को हमारे रूटीन में शामिल करने के लिए और बच्चे का कंसंट्रेशन वापस लाने के लिए. Absolutely. And one more thing you've mentioned, it was very कम्युनिकेशन की आपने बात की कि बच्चे तक ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि आप उसकी बात समझने के लिए उससे बात कर रहे हैं. यू नो, यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड. इट्स नॉट दैट कि उसको ऐसे कि हाँ अरे क्या हुआ, अच्छा ठीक है, यू नो, नॉट लाइक प्रोबिंग एज यू सेड. तो समझने वाला जो फैक्टर है, तो आपके जो वर्ड्स हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, and maybe if sometimes if you can replace couple of statements, you know, that probing statements into that understandable, you know, statements, so that will be, I think, nice for your children. So yeah, thank you so much ma'am. So we'll move on to our last question. So time bhi thoda ho raha hai, so like, can you shed some light on ADHD, its causes and measures to prevent this? Like, oh yes. Now एक चीज आज सबको बहुत जानना जरूरी है कि हर बच्चा जो कंसंट्रेशन लेस है उसका वो ADHD नहीं होता है, ठीक है. सो रिमेम्बर दैट. एंड ADHD ऐसी चीज है जो बिगिंस इन चाइल्डहुड बट इट कैन परसिस्ट टिल एडल्टहुड एज वेल. तो एक समझ लीजिएगा कि कंसंट्रेशन लो है तो ADHD ही है, वो एकदम गलत बात है, वो नहीं हो सकता है.
ना कुछ कुछ हमें समझने की जरूरत है कि व्हाट इज लाइक, कैसे आप जानोगे कि बच्चे को ADHD है। बहुत सारी चीजें होती है, बट दैट इज अगेन नॉट लैक ऑफ कंसंट्रेशन। बच्चा एक जगह पे बैठता नहीं है, कूदता रहता है, एक टास्क खत्म नहीं करता है, जैसे यहाँ पे गया, जैसे वहां जंप किया, जैसे कुछ किया, एंड जहाँ पे बहुत शांति है या एकदम आराम वाला माहौल है, उससे बैठा नहीं जाएगा. Right, so the child cannot sit in silence, in a silent माहौल. Right, second thing is वो constantly कुछ कुछ करता रहेगा, जैसे खेलता रहेगा, मोबाइल लिया या कुछ लिया या पानी पिया या आवाज किया या कुछ बच्चा करेगा. It's fidgeting भी होगा. कोई भी टास्क पे 0% concentration, 0% in the sense he'll be constantly jumping around. आप उसको खाना दे रहे हो तो खाना खिला रहे हो, खाना खिलाते खिलाते वो कहीं भागते जाएगा या कुछ किसी चीज की बात करेगा, पढ़ाई करने की करेगा. मतलब there is no connection between the task. Very important. Then there's excessive movement. So excessive physical movement, jumping and doing something and the other, maybe सोफे पे चढ़ना, बेड पे चढ़ना, बाहर जाना, कहीं जाली पे चढ़ जाना, कुछ करते रहना. मतलब the child cannot sit at one place continuously. अगर आपका बच्चा लाइन में है, तीसरा चौथा है और कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है सबको, स्कूल में टीचर्स आपको बता रही है कि बच्चा डिस्ट्रैक्ट बहुत कर रहा है, अपने टर्न के लिए वेट नहीं कर पा रहा है, तो आप दूसरी चीजें चेक करके आप प्रोफेशनल हेल्प लेके समझ सकते हैं that whether your child has concentration problem or whether your child has ADHD. कोई भी चीज को बोलना सोचे समझे बिना बोलना, कोई भी चीज को करना सोचे समझे बिना करना. So anything which has no relevance also is something wherein it's a trait of ADHD child. And कभी-कभी आप बात कर रहे हो, आप husband wife बात कर रहे हो, कोई भी और के साथ बात करें, immediately बीच में आना. So this is something which are few of the symptoms and which which can help you understand कि शायद आपका बच्चा ADHD तो नहीं है, but remember, हर एक बच्चा जो एनर्जी हाई होती है और कंसंट्रेशन लो होता है, उसका मतलब ये नहीं होता है कि वो ADHD ही है. समझने की कोशिश करिएगा. अगर आप चैनलाइज करो तो शायद ना भी हो. सो कोई भी तरह के जजमेंट गूगल से लेना बंद करिएगा. प्लीज एक प्रोफेशनल की हेल्प लेके आप समझने की कोशिश करिएगा whether it's ADHD, whether normal concentration lack है या ज्यादा concentration lack है, ज्यादा concentration lack है तो ADHD बोला जाता है. तो उसमें भी वेराइटीज रहेगी. समझने की कोशिश करिए. गूगल पे जाके एक या दो ट्रेट्स देखा, मेरा बच्चा, रिद्धि बोल रही थी मेरा बच्चा जंपिंग बहुत कर रहा है और concentration 0 है, 100% ADHD है. No, it is not that. Right? So concentration बहुत high level पे lack of concentration है, तो शायद there can be a deficit, the child can be ADHD, but again refer to a professional, get a test done and फिर ही कोई conclusion पे आइएगा. Without test, never say to your teachers should not tell the parents that your child is ADHD. Professional test के बिना कोई भी तरह के conclusion पे आना strict no. Thank you so much, doctor, for this valuable suggestion कि हम अपने बच्चे को खुद से लेबल ना करते रहे, ना टीचर्स भी उस चीज से बचें. और प्रोफेशनल हेल्प की जो आपने बात की है उसके लिए ही सुखदा, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज फ्लैश आउट आवर पेरेंटिंग हेल्पलाइन नंबर. तो हमारे यहाँ पर जो है साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट की टीम है जो लगातार हमारे पेरेंट्स के मदद के लिए है, बच्चों की मदद के लिए है, उनसे जुड़े हुए सब सवालों के लिए है, और वो एकदम ही कॉन्फिडेंशियल होते हैं. टोल फ्री नंबर है जो फ्लैश आउट किया है, दिखाया है स्क्रीन पर. आप प्लीज इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, और इसमें कॉल करने पर फ्री में आपको हेल्प मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी हमारे एक्सपर्ट से, और कॉन्फिडेंशियल रहेगी. आपकी बात आप तक और काउंसलर के बीच में ही रहेगी. इसीलिए हम यहाँ पर इस तरह के बहुत सारी चीज़ों को ऐसे भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम किसी को पॉइंट आउट करते हुए करें, क्योंकि हर बच्चे के बारे में चीज़ें अलग हैं और उसकी एक प्राइवेसी, उसकी एक
उसका एक उसका अपने तक सीमित रहना आपके बच्चे के बारे में वो ज्यादा जरूरी है और अहम है। So thank you, Sugdha, for flashing out the number. सपना, Yes, यहाँ मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी, since lot of parents are there, कि पेरेंट्स एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपके बच्चे का कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही खराब है और अगर आप प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हो और अगर आपके बच्चे को ADHD का कोई भी, 2 तरीके ADHD होते हैं, उसमें से कोई भी एक तरीका आता है, डोंट स्टार्ट ब्लेमिंग योर स्पाउस फॉर इट। फादर को मदर को नहीं करना है या मदर को फादर को ब्लेम नहीं करना है। इट इज नॉट बिकॉज कि एक दूसरे की परवरिश की वजह से ये हुआ है, कभी कभी ये जेनेटिकली भी होता है। I mean majority of the time it's genetically. So ensure that आप blame game में ना करो, तुमने नहीं ध्यान रखा तो बच्चे को ये आया, that is not the correct way to address. And दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है कि ADHD is not a disorder. ठीक है, it is completely the child, you can work with the child doing a little bit of occupational therapy and your child is as proper and normal as I and Sapna are, right? They are also normal, only वो disorder नहीं गिना जाता है। अब तो ध्यान रखिए कि आप बच्चे को लेबल नहीं करना, एक दूसरे को ब्लेम गेम में नहीं डालना। एंड ADHD अभी थोड़ा नॉर्मल जैसा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डिटेक्ट होता है एंड इट इज कंप्लीटली सिंपल टू वर्क ऑन इट, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ब्लेम से दूर रहना है, बल्कि आप एक दूसरे को सपोर्ट करके आपके बच्चों को सपोर्ट करना है। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जा भी सकते हैं, अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप घर पे भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी कर सकते हैं और वो बहुत ही आसान होता है। सो एंश्योर दैट collectively you work with your child, help your child to come out of it, and this is not a disorder. Remember that it is workable. Thank you so much for this important point, ma'am, because हम जानकारी नहीं होती तो we tend to assume so many things और फिर हम उसमें परेशान हो जाते हैं। Thank you so much for this clarity. I think हमारे पास questions का तो time नहीं होगा शायद, क्योंकि already थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए हैं। Sugdha? Hello? Yeah, Sapna. Yeah, are we taking questions like 1 or 2 or maybe You can check with people, audience, if हाँ, anybody is interested. Sugdha, can you please check like अगर कोई सवाल अगर है तो maybe if ma'am can address. Chat box actually disable किया है हमने, तो No, so they can chat with me, I mean the host and the co-host, but I can't see I mean any such serious kind of a questions there. Okay. But I we think can very ask them to beautifully, raise the hand if they have. right. Actually, Riddhi has beautifully explained Absolutely, everything. it was self-explanatory. So I think हमने जो वो flash out किया है number, so they can maybe later on take the help. So Yeah, so अगर किसी के पर्सनल इश्यूज रहेंगे तो यू कैन ऑलवेज कांटेक्ट हमें, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारे टोल फ्री नंबर पे कॉल कीजिए, कंप्लीटली फ्री सुविधा है। और बिफोर वी क्लोज दिस टुडेज सेशन, बिग थैंक यू टू रिद्धि, इट वाज रियली वंडरफुल हैविंग यू ओवर हियर। Sukada, can you please share that? Yes, yeah, so it's a small token of gratitude from all of us at Parisar Asha. So It's such a beautiful, ma'am. It's really beautiful. Thank you so much. So thank you so much. Yeah, over to you, Sapna. yeah, thank you so much, Riddhi ma'am. Like seriously, as Aarti ma'am mentioned, पूरा session और आपके सारे जवाब इतने खूबसूरती से आपने present किए, वो इतने self-explanatory थे कि इसीलिए मुझे लगता है कोई सवाल उस तरह से नहीं है, लेकिन हम हर एक चीज को बहुत ज्यादा आपने अच्छे से suggestions के साथ explain करते हुए हम आगे बढ़े. Thank you so much. Thank you, Sapna. Thank you so much. Thank you, parents. Thank you. Thank you. Thank you. Good night, everyone. Stay home, stay safe.